السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، آپ تمام ان دونوں اسٹوڈنٹ کا جنہوں نے مولوی یا فوقانیہ کا فارم بھرا ہے اور دینیات دو پڑھا رہا ہوں، بہت گہرائی سے پڑھا رہا ہوں، سب کو دیکھنا ہے۔ دینیات میں سوالات بالکل ایک آتے ہیں، مسائل بالکل ایک ہوتے ہیں، لہذا آپ دونوں کو ویڈیو کو مکمل طور سے دیکھنا ہے۔ آج پڑھیں گے آپ خیار شرط کے بارے میں، پھر نکاح آئے گا، طلاق آئے گا، مہردن آئے گا، عدت آئے گا، بہت مسائل آپ کو اس میں پڑھنا ہے جو امتحان میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بس آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ لوگوں نے بار بار کال کیا، بار بار کمنٹ کیا کہ مولانا صاحب دینیات اور یہ خاص طور سے سبجیکٹو کوشچن پڑھائیے، تو بڑی کچھ تفصیل سے پڑھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر لائک کریں گے تو انشاءاللہ میں مزید ویڈیو آپ کے امتحان تک دیتا رہوں گا اور آپ کا ہیلپ کرتا رہوں گا۔ سوال نمبر دیکھیے، کہیں 5 ملے گا، کہیں 10 ملے گا، کہیں 20 ملے گا، کہیں 25 ملے گا۔ کیوں کہ ہم نے کاٹ کاٹ کر کے چن کے آپ کو پڑھا جو امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے، یہ 10 سال کا تجربہ رہا ہے۔ سوال نمبر یہ 5 ہے، تو 5 سے مطلب کو نہیں، آپ کو سوال سمجھنا ہے۔ سوال میں ہے کہ درج ذیل عبارت کی تشریح اس طرح کیجیے کہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، پوچھ رہا ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح وضاحت کرنا ہے کہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائے۔ کیا ہے؟ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولہما الخیار ثلاثۃ ایام فما دونہا ولا یجوز اکثر من ذلک۔ یہ عربی لفظ ہے، شاید اسٹوڈنٹ کچھ عربی پڑھے لکھے ہوں گے، وہ الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے، جو نہیں پڑھے لکھے ہوں گے صرف الفاظ کو سنیے اور اس کی تشریح کو سمجھیے۔ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ بیع کے اندر بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار اختیار جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی صورتیں کیا ہے۔ یہ سوال کا آپ کا مطلب ہو گیا۔ جواب سنیے، درجہ بالا عبارت میں قدوری کے مصنف نے خیار شرط کی وضاحت کی ہے، چنانچہ اس عبارت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ بائع یعنی بیچنے والا اور مشتری یعنی خریدنے والا۔ یہاں پر آبجیکٹو یہ کوشچن نکل گیا کہ بائع کے معنی کیا ہوتا ہے، تو بولیں گے بائع کے معنی ہوتا ہے بیچنے والا، مشتری میں کیا ہوتا ہے خریدنے والا۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہوگا، ہم نے آبجیکٹو میں پڑھا بھی دیا ہے۔ تو بائع مینس بیچنے والا اور مشتری مینس خریدنے والا، یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر؟ خیار شرط جائز ہے۔ خیار شرط ایک ایسا خیار ہے، خیار معنی اختیار، خیار شرط ایک ایسا خیار ہے جو شرط سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر شرط ثابت نہ ہو خیار بھی ثابت نہ ہوگا۔ بیع کبھی لازم اور کبھی غیر لازم ہوتا ہے۔ بیع معنی ہوتا ہے کین بیچ کرنا۔ بیع لازم میں شرط کے باوجود خیار نہیں ہوتا ہے اور بیع غیر لازم میں خیار موجود ہوتا ہے۔ خیار شرط بیع غیر لازم کی قسموں میں داخل ہے۔ خیار شرط ہی کا دوسرا نام بیع مقابضہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خیار شرط میں بائع اور مشتری کو یعنی کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو 3 دن یا اس سے کم کا اختیار حاصل ہوگا۔ مان لیجئے ہم نے آپ کے سامنے بکری بیچی یا کوئی سامان بیچا اور کہا کہ 3 دن کے اندر میں کوئی اگر عیب نکل جائے تو پھر میں واپس کر دوں گا، اس نے کہا کہ منظور ہے، یا 3 دن کے بعد مجھے اگر نہیں لینا ہو تو ہم چھوڑ دیں گے، تو بھی کہا کہ منظور ہے۔ جب دونوں سے بات ہو جائے تو 3 دن کے اختیار تو دیا جاتا ہے۔ تو بائع اور مشتری کو 3 دن یا اس سے کم اختیار حاصل ہوگا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ ہے، تبھی جب کہ مدت مذکور ہو چکا ہو اختیار جائز ہے، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ 5 دن 6 دن بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک سے بھی یہ بھی جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 3 دن ہی تک اختیار رہے گا۔ یعنی جب ایک مدت معلوم کا نام لیا جائے تو اس مدت معلوم تک خیار شرط بائع اور مشتری کے لیے جائز ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن ہی تک ہے، کوئی عیب نکل جائے تو واپس کر دوں گا، وہ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ لیکن امام یوسف امام محمد کہتے ہیں کہ 3 دن نہیں، اگر 10 دن کا بھی یا 5 دن کا بھی 7 دن کا بھی اگر وقت متعین ہو گیا تو اس کے اندر بھی کوئی عیب نکل جائے یا کوئی خرابی آ جائے تو واپس کرنے لینے دینے کا اختیار رہے گا۔ معلوم ہو گیا؟ امام حنیفہ کے نزدیک 3 دن ہے اور امام یوسف کے نزدیک جتنا وقت کا متعین کر دیا ہے اتنا دن تک ہے۔ یہ آپ کو مسائل یاد کر لینا ہوگا، چاہے دونوں اسٹوڈنٹ چاہے فوقانی ہو یا مولوی کو۔ اب آئیے سوال نمبر 6 میں ہے بیع سلم کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے بیع سلم۔ تو سلم کے لغوی اور اصطلاحی تعریف تحریر کیجیے، یعنی لکھیے اور بتائیے کہ سلم کن چیزوں میں جائز ہے اور ان کی صحت کی شرائط کیا ہے۔ اختلاف ائمہ بھی بیان کیجیے، یہ آپ کے سوال امتحان میں آ سکتا ہے۔ جواب، لغت میں سلم اس کو کہتے ہیں جس میں سمن تعجیل
ताजीलन दे दी जाए, और इस्तिलाह शरअ में अख्ज़ आजिल बाजिल यानी उधार सामान का तकदीरी कीमत के बदले में फ़रोख्त करना सलम कहलाता है। सलम इन चीज़ों में जायज़ है जो नाप तौल कर या गिनती के साथ फ़रोख्त की जाती है, जिनमें कोई तफावत नहीं होता है, जैसे अखरोट और अंडे। इस तरह सलम उन चीज़ों में भी जायज़ है जो गज़ या मीटर से नाप कर फ़रोख्त की जाती है, जैसे कपड़ा। अबू हनीफा के नज़दीक बै सलम के सही होने के लिए मंदरजाल शर्त है। नंबर 1, जिन्स मालूम हो, यानी कि ये बयान कर दिया जाए कि ये चावल से या चना वगैरह, ठीक है। दूसरी है किस्म मालूम हो, यानी ये बयान कर दिया जाए कि चावल नहर से सिंचाई होने वाली ज़मीन का होगा या बारिश से सैराब होने वाली ज़मीन का होगा। बिल्कुल अगर बात को खोल दिया गया तो बाइसल इसमें जायज़ है। देखिए 3 में है कि सिफत मालूम हो, यानी कि ये मालूम कर लिया जाए कि लाल गेहूँ होंगे या सफ़ेद होंगे। 4 में है गल्ले का मिकदार मालूम हो, यानी इतने मन होंगे या इतने पैमाने होंगे। 5 में है मुद्दत मालूम हो, जैसे 5 माह या इतने दिनों में देंगे। 6, उस माल की मिकदार मालूम हो कि कितना लेना है कितना देना है। ये शराइत ऐसी चीज़ों में है जिस बै में मिकदार की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैली, वज़नी या अददी। कैली कहते हैं जो नापी जाए, वज़नी कहते हैं जो वज़न किया जाए, और अददी कहते हैं जो गिन लिया जाए, ठीक है। साथ में देखिए सलम फ़ीस के अदा करने की जगह मुकर्रर कर दी जाए। ये शर्त ऐसी चीज़ों के लिए है जिसको ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मशक्क़त उठानी पड़ती है। उसके बाद है इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जब रासुल माल मुअय्यन हो तो उसके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और सलम फ़ी अदा करने की जगह का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि जहाँ अक़्द बै हो और वहीं सलम फ़ी भी अदा किया जाएगा। ये मसाइल है जो आपको एक बार सुनने के बाद से कई बार आपको वीडियो PDF आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको बात समझ में आएगी। सवाल नंबर 7 में है दरअसल इबारत की तशरीह इस तरह करें कीजिए कि मसला की पूरी वजाहत हो जाए। अल बैउ यनअक़दु बिल इजाब वल क़बूल इज़ा काना बिल अल्फाज़िल माज़ी इज़ा वजब अहदुल मुतअक़िदैन फल आखिर बिल खैर इंशा क़ब्ल फिल मजलिस व इंशा रद्दहु फ़अय्युहुमा क़ाम मिनल मजलिस क़ब्ल अल क़बूल बतल इजाब। ये सवाल बहुत टेढ़ा है। पूछ रहा है कि जब हम खरीद और बेच करते हैं और जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ पर हमने अगर कहा कि हमने ये माल दिया आपको, तो आपने कहा हमने ले लिया, तो उसी मजलिस में है अगर आपने कह दिया तो इजाब कबूल हो गया। लेकिन आपने कह दिया मैं खरीदूंगा, उसने कहा बेचूंगा, और वो चला गया, लेकिन फिर बात मुकम्मल नहीं हुई, तो इजाब कबूल साबित होगा कि नहीं होगा, यही मसला इसके अंदर बताया जा रहा है। सुनिए, मज़कूरा बाला इबारत पर निसाब साहिब फ़िक़्ह की किताब क़ुदूरी से माख़ूज़ है। इस इबारत में क़ुदूरी के मुसन्निफ़ ने बै के इनेक़ाद और अदम इनेक़ाद पर रोशनी डाली है। चुनांचे इबारत के सियाक़ व सबाक़ में बै के मुनाक़िद होने के लिए इजाब व क़बूल का होना ज़रूरी है कि मैंने कहा कि ये कलम बेच दिया, उसने कहा कि हमने ले लिया। दरा हालांकि इजाब व क़बूल दोनों के अल्फाज का इस्तेमाल माज़ी फ़िल माज़ी में किया गया हो। मिसाल के तौर पर फ़रोख्त करने वाला कहे कि मैंने फ़रोख्त किया, और ख़रीदने वाला कहे कि मैंने ख़रीद लिया, ख़रीदा। जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों में इनमें से किसी एक ने भी अगर बै को वाजिब करार दिया, तो दूसरे को इख्तियार है कि अगर चाहे तो मजलिस में कबूल करे और चाहे तो रद्द कर दे, और ये कह दे कि मुझे ये बै मंजूर नहीं है। अगर दोनों में से कोई कबूल करने से पहले मजलिस से मैं उठ खड़ा हुआ तो इजाब बातिल हो जाएगा। यानी मजलिस में ये कह दिया हमने लिया, उसने कहा हमने दिया, तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने सामान लिया और वो नहीं कहा, उठ के खड़ा हो गया, तो उसके इजाब कबूल नहीं कहा जाएगा। उठ खड़ा हुआ तो इजाब बातिल हो जाएगा, लिहाजा बै का इनेक़ाद नहीं होगा, यानी कीन बेच नहीं होगा। इसलिए कोई कबूल करने के लिए मजलिस से मौजूद होना ज़रूरी है, और उसका मजलिस से उठ जाना इसके अदम कबूलियत पर दलालत करता है। इसलिए मजलिस में कबूल करने से पहले उठ जाने की सूरत में बै मुनाक़िद नहीं होगा। ये आपको याद करना होगा। 1 से 2 बार वीडियो को सुन करके PDF को पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पूरी ज़हन में बात आ जाएगी। और सेम टू सेम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको कुछ मिला करके लिख देंगे, तो आपको कब होगा, जब आप PDF को पढ़ेंगे और बार बार और वीडियो को सुनेंगे 1 से 2 बार, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी।
अब आइए बहुत आता है, बे मुराबिहा किसे कहते हैं, बे तौलिया किसे कहते हैं, ये तमाम शर्त इम्तिहान में पूछे जाते हैं। बे मुराबिहा और तौलिया की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। अगर बे मुराबिहा में मुश्तरी बाय की खैरत पर मुत्तला हो तो उस वक़्त उसके लिए क्या लाजिम है, अइम्मा के इख्तलाफ पर रोशनी डालिए। सुनिए जवाब, बे मुराबिहा अक़्द अव्वल में समन अव्वल के एवज़ जिस शय का मालिक हुआ था उस शय को समन अव्वल पर कुछ ज़्यादती के साथ फ़रोख्त कर देना बे मुराबिहा कहलाता है। बे मुराबिहा अक़्द अव्वल में समन अव्वल के एवज़ जिस शय का मालिक हुआ था उस शय को समन अव्वल पर कुछ ज़्यादती के साथ फ़रोख्त कर दिया, बे मुराबिहा कहलाता है। हमने 5 रुपये का सामान ख़रीदा और 5 से 5.25 में 5.5 में बेच दिया तो वो बे मुराबिहा है। जैसे एक कलम को 10 रुपये में ख़रीदा और उसको नफ़ा पर किसी दूसरे के साथ 12 रुपये में बेच दिया तो भी बे मुराबिहा कहलाता है। यकीन करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। जो सामान आपने ख़रीदा है उस सामान को थोड़े ज़्यादा कीमत पर आपने बेच दिया तो उसको बोलते हैं बे मुराबिहा, यानी नफ़ा वाला बे। बे तौलिया यह है अक़्द अव्वल और समन अव्वल के एवज़ में जिस शय का मालिक हुआ था उस शय को समन अव्वल पर बग़ैर ज़्यादती के फ़रोख्त कर देना बे तौलिया है, यानी दाम का दाम बेच देना बे तौलिया कहलाता है। जैसे किसी ने 10 रुपये में कलम ख़रीदा और उसे बग़ैर नफ़े के 10 ही रुपया में फ़रोख्त कर दिया तो बे तौलिया की मिसाल है। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, ये आपके लाइफ में आने वाला चीज़ भी है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद से बे मुराबिहा में अगर मुश्तरी की ख़यानत पर मुत्तला हो तो उसको इख्तियार है कि अगर वो चाहे तो पूरी कीमत पर माल ले और चाहे तो माल न ले और बे को रद्द कर दे। और बे तौलिया में किसी ख़यानत पर मुत्तला हो तो मुश्तरी ख़यानत की मिक़दार समन साक़ित कर दे या माल ख़रीद ले। ठीक है, फिर समझिएगा, बे मुराबिहा में अगर मुश्तरी किसी ख़यानत पर मुत्तला हो जाए तो उसको इख्तियार है अगर चाहे तो पूरी कीमत पर माल ले और चाहे तो माल न ले। मतलब ये है कि बे मुराबिहा यानी कि हमने 5 रुपये का कलम ख़रीदा और 5.5 में बेचा है, लेकिन जैसे जैसे हम 1 दिन के 2 दिन के बाद अगर चल जाए पता कि कलम में कमी और ख़राबी है तो आपको इख्तियार है उस माल को आप लें चाहे न लें। ठीक है, चाहे रद्द कर दें, लेकिन बेचने वालों को फिर लेना पड़ेगा। और बे तौलिया में किसी ख़यानत पर मुत्तला हो जाए तो मुश्तरी ख़यानत की मिक़दार समन साक़ित कर दे और माल ख़रीद ले, यानी कि जो पैसा है और माल जो कुछ माल को कम कर दे और फिर माल को ख़रीद ले, तो ये बे तौलिया में ऐसा होता है। आगे देखते हैं इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक क्या है। इमाम यूसुफ़ क्या फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक है और इमाम यूसुफ़ फरमाते हैं कि मुराबिहा और तौलिया दोनों में से किसी बे में अगर मुश्तरी ख़यानत पर मुत्तला हो तो मुश्तरी ख़यानत की मिक़दार को समन से साक़ित कर देगा, जो पैसा है उसमें से कुछ को कम कर देगा। इस मसले में इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि बे मुराबिहा और तौलिया में किसी बे में भी ख़यानत पर मुत्तला होने पर ख़यानत की मिक़दार साक़ित नहीं किया जाएगा, अलबत्ता मुश्तरी को लेने और न लेने का इख्तियार यानी करें कि जितनी चीज़ की गड़बड़ी है, माल की ख़राबी है उसको ख़त्म कर दे, बाकी को ले ले। और कहते हैं कि नहीं, साक़ित नहीं करिए, अलबत्ता मुश्तरी चाहे तो सामान को न भी ले सकता है। ये आपके सवाल हो गए। अब आएगा बे फासिद, बे बातिल, बे हजर बिल मुलामसा, बे मज़ाबिना, बे फासिद, तमाम चीज़ों के इम्तिहान में आप पूछ जाते हैं। इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा दूसरी वीडियो में, जब तक के इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करते इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ वीडियो को एक बार सुनना है और PDF लेकर के आप बिल्कुल उसका रट जाइए। इम्तिहान में ये तमाम क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में क्वेश्चन आया है और आता है आएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।